اور جموں کشمیر عوام کو اس بات پہ کنوے کرانا چاہتا ہے کہ آپ ہمیں امن دیجئے، ہم فوج کو بھی بارڈرز پہ لے جائیں گے، ہم اپسپا کو بھی یہاں سے ہٹائیں گے، یہ آپ کی ریاست ہے اور یہ آپ کا ملک ہے، آپ اس میں کام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک خاص موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو سب کشمیریوں سے وابستہ ہے، اور یہ ایک سیاسی موضوع ہے۔ اور جب کل جو ہمارے دیش کے گرہ منتری ہے امت شاہ صاحب، وزیر داخلہ کے جو منسٹر ہے امت شاہ صاحب، انہوں نے گلستان نیوز کے ایک روبرو شمارے میں اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کیا، اور سیاسی طور پر جموں کشمیر کی عوام کے ہت میں انہوں نے جو باتیں کل رکھی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس پہ ہم آج کا تجزیہ رکھیں گے۔ سیاسی اعتبار سے اگر آپ ہندوستان اور جموں کشمیر کی جو 75 سالہ سیاسی تاریخ دیکھو گے، اس میں ہر دور میں کہیں نہ کہیں پہ الگ الگ طریقے سے من مٹاؤ رہے ہیں۔ سیاسی اینگل سے اگر آپ دیکھو گے کہ جموں کشمیر کی جو اپنی سیاسی ساخت تھی، جسے ہم آرٹیکل 370 کے دائرے میں بند کرتے ہیں، بہت ساری 35A تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہند نے جموں کشمیر عوام کو دیا تھا۔ تو کچھ چیزیں ضروری ہے جس پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر دور میں جو جموں کشمیر کی سیاست ہے وہ الگ الگ طریقوں میں الگ الگ رخ اختیار کر چکی تھی۔ اور اگر ہم اس وقت دیکھیں گے، جب آرٹیکل 370 اور 35A 5 اگست کو یہاں سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو 11 دسمبر کو جو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے، اس کے بعد تقریباً ہوم منسٹر آف انڈیا نے پہلی بار کھل کر کشمیر کے معاملے میں بات کی، کشمیر کے مسائل پہ بات کی، یہاں کے اقتصادی حالات پہ، یہاں کے سماجی حالات پہ، یہاں کے لوگوں کے بارے میں ان تمام آنکڑوں پہ بات کی جو ضروری ہے آپ کے سامنے رکھنا۔ اس میں انہوں نے بڑے مکھیہ چیز کچھ ایک رکھے، جس میں انہوں نے ٹورزم پہ بات کی، جس میں انہوں نے اپسپا پہ بات کی، جن میں انہوں نے کہا کہ جو یہاں 40,000 لوگ کشمیری مارے گئے، جس میں زیادہ مسلمان ہیں، ان کے الفاظ یہ تھے، جس میں ان کی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا میں پاکستان سے کیوں بات کروں، میں جموں کشمیر کی جوان عوام سے بات کروں گا، کشمیر کی نوجوان قوم سے بات کروں گا۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تھے اس انٹرویو میں، اور اس میں جموں کشمیر عوام کو کیا ملا اور جموں کشمیر عوام اس کو کیسے دیکھتی ہے، وہ خلاصہ اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیونکہ جب دیش کا ہوم منسٹر اپسپا پہ بات کرتا ہے، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو یہاں کا جو فوجی جماوڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کو لاجک دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سرحدی پٹی ہے، ہمارے جو دو ملک ہیں، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف پاکستان سے ہے، دونوں کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کی طرف سے اندرونی خلفشار یہاں پچھلے دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ بتایا جاتا تھا ہوم منسٹری کی طرف سے، اسی لیے ہم نے اپسپا ایک قانون لایا ہے جو ہماری فورسز کے لیے ایک کہتے ہیں وہ ایک کاؤچ بنے گا۔ کل ایک صحافی نے ان سے اس کے بارے میں سوال پوچھا، اور اس سوال کا جواب تھا کہ ہم اب اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو ہم اب اس کے بارے میں سوچیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو ہوم منسٹری کی پوری ٹیم ہے، اور جو اس کا اگر آپ پازیٹیو اینگل دیکھو گے، جس خوشگوار موڈ میں کل امت شاہ صاحب نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، اس میں کہا کہ ہم اس پہ سوچیں گے، اور شہری علاقوں میں ہے، پہلے ہم شہری علاقوں سے شروع کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو اینگل سے لینا چاہتے ہو، کیونکہ جب دیش کا ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ ہم اس پہ سوچیں گے، اٹ مینز دیٹ وہ کہیں نہ کہیں پہ اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ قانون سماجی سطح پہ عوام کے لیے صحیح نہیں۔ یہ ایک پہلو تھا اس میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر امن یہاں پہ بنا رہا، اور ایک اور بات انہوں نے اس میں کہا کہ جو ہماری جموں کشمیر کی پولیس ہے اس کو ہم اب اپر ہینڈ لے آ رہے ہیں۔ اس کے ایک 7 سالہ پالیسی تھی ہماری، جس میں ہم جموں کشمیر پولیس کو اب خود مختار بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا، اگر ہمیں کہیں انفارمیشن ملتی تھی ٹیرر ایکٹس کی، تو ہم جو آرمی ہے اور اس کے ساتھ CRPF اور اس کے بعد پولیس کام کرتا تھا وہاں پہ، لیکن اب ہم پولیس کے کو آگے رکھتے ہیں، اور سپورٹنگ سٹاف میں اس کو انڈین آرمی رہتی ہے اور CRPF رہتی ہے۔ تو یہ اس نے ایک بڑی مہتوپورن بات کی کہ ہم دھیرے دھیرے سے پوری جو
जो पूरी रियासत का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले धीरे धीरे कर रहे हैं। उसमें हम जम्मू कश्मीर पुलिस को अब तैयार कर रहे हैं प्रोफेशनली इन तमाम चीजों से डील करने के लिए। तो ये जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, उसमें जब अफसपा की बात आई तो उन्होंने अफसपा पे जिस तरह बात की, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जो यहाँ की सारी सियासी जमातें हैं उनके लिए वो चश्मकश था, क्योंकि जब देश का जो होम मिनिस्ट्री इस पे बात करना चाहता है और जम्मू कश्मीर अवाम को इस बात पे कन्वे कराना चाहता है कि आप हमें अमन दीजिए, हम फौज को भी बॉर्डर्स पे ले जाएंगे, हम अपसपा को भी यहां से हटाएंगे, ये आपकी रियासत है और ये आपका मुल्क है, आप इसमें काम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक पहला फैक्ट था इसमें, इस इंटरव्यू को, क्योंकि जब देश का इतना बड़ा कद्दावर लीडर आपके सामने इन तमाम चीजों का खुलासा करता है, तो अगर आप उसको सियासी एंगल से भी और जुज़वी एंगल से भी अगर आप देखोगे कि उसमें जम्मू कश्मीर अवाम के मुफादात कहाँ हैं, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बात की। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स है, जो यहाँ के जो पत्थरबाजी हो रही थी उसमें कैसे गिरावट आई, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात की फैक इनकाउंटर्स की। जो फैक इनकाउंटर्स उन्होंने बताया कि हमने हमारे दौर में इन 10 सालों में तकरीबन 4 फैक इनकाउंटर्स हुए और उनमें हमने बिल्कुल कानून के जरिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और हमने उसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है कि कहीं भी अब फैक इनकाउंटर नहीं होने चाहिए। उन्होंने सीधा मुखातिब होकर 3 खानदानों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उनको अब हिसाब देना होगा कि उन्होंने किस तरह से जम्मू कश्मीर में फैक इनकाउंटर कराए। पहले सिक्योरिटी के नाम पे जम्मू कश्मीर अवाम को डराते थे, फिर उनको जेलों के सलाखों के पीछे डालते थे, फिर उनसे वोट लेते थे और उनको एक कहते हैं ना वो ह्यूमिलेशन के साथ और उनको एक कहते हैं ना वो खौफ के साथ रखा जाता था, एक डर दिखाया जाता था। उन्होंने ये तक भी कहा कि जो पीओके हैं, जो वहां के मुसलमान हैं, वो भी हमारे अपने हैं, वो हिस्सा भी, जमीन का टुकड़ा भी हमारा है और वो मुसलमान भाई हमारे हैं। तो अगर आप देखेंगे अब बीजेपी कहते हैं ना वो जिस तरह से अब सियासत के मूड में है जम्मू कश्मीर में, बड़ा महत्वपूर्ण होगा आने वाला कल। और इन अगर आप देखोगे उसने टूरिज्म पे जब उन्होंने बात की, टूरिज्म पे उन्होंने पर्टिकुलर 2-4 चीजों पे उन्होंने बात रखी। उसमें उन्होंने गुलमर्ग का नाम लिया, एक और जगह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ एक नए बड़े 7 होटल्स बनने जा रहे हैं। इन्वेस्ट का उन्होंने तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास MOS साइंस हो चुके हैं। तो जो मोटा मोटा इसमें है, क्योंकि सिक्योरिटी सतह पे जम्मू कश्मीर अवाम हर वक्त कंसर्न रहती है। अगर आप देखोगे कि जो उन्होंने बिल्कुल इल्जाम आयद किया, जो 3 सियासी खानदान है उन पे इल्जाम आयद किया कि उन्होंने क्या किया 70 साल में। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 370 की असल बुनियाद देखोगे, ये इन सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। जैसे आज बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, इसी तरह किसी दौर में कांग्रेस भी बरसर इक़्तिदार हुआ करती थी। और उस दौर में किस तरह आर्टिकल 370 को कमजोर किया गया और किस तरह से जम्मू कश्मीर अवाम को अंधेरे में रखा गया और हर दौर में आर्टिकल 370 को पहले कमजोर करते गए, इस हद तक ले आए गए, फिर अब वो कहते हैं ना वो अब इतना छोटा रह चुका था कि अब एक किक से वो बाहर गया, इतना छोटा वो रह चुका था अब। तो इन तमाम चीजों पे कल जब होम मिनिस्टर ने कल बात की और जम्मू कश्मीर अवाम से कहते हैं ना वो सीधा लग रहा था, कहते हैं ना वो बॉडी लैंग्वेज से बात की, उसमें बड़ी नम्रता थी, उस बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पे वो पॉजिटिवनेस थी, उस बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर को इस बात से ये बात बावर करानी थी, कन्विंस कराना था कि हम आपके लिए है यहाँ पे और आप सिर्फ अमन के नाम पे हमें कॉपरेशन कर दीजिए, डेवलपमेंट हमारे नाम पे है, हम आपको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, हम आपको कहते हैं ना वो इन्वेस्ट यहां दे रहे हैं और धीरे धीरे से ये हालात बदलेंगे। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमें ये बहुत एक लंबे अरसे दराज से ये मसला पड़ा हुआ था, जिसमें हम पत्थरबाजी देख रहे थे, जिसमें हम फैक इनकाउंटर्स देख रहे थे, जिसमें हम मुसलमानों की कत्ल गारत यहां देख रहे थे। उसमें उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और सिर्फ उम्मीद की, क्योंकि 2-3 बार जो सहाफ़ी उनसे सवालात पूछ रहे थे, उन्होंने 2-3 बार कहा कि जम्मू कश्मीर अवाम के नाम पे क्या पैगाम है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अमन के साथ रहिए और उसके बाद डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी है और हमारा दायित्व है कि हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। क्योंकि बदलते भारत के साथ साथ बदलते कश्मीर की भी जो कल उन्होंने एक लकीर खींची, उसमें जम्मू कश्मीर अवाम को कहीं ना कहीं पे इन तमाम चीजों पे बात सोचने की पॉइंट दिया, सोचने का जो एक अलग तरीका दिया कि आप इस पे आप सोच सकते हो कि बीजेपी आपके लिए क्या चाहती है। अगर आप मवाजना करोगे
बी जे पी का दौर इक़्तिदार और कांग्रेस का दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर की हालात, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर आप देखोगे कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में कैसे डेवलपमेंट्स हुए और जो बीजेपी के दौर इक़्तिदार में कश्मीर में कैसे डेवलपमेंट्स हुई, जम्मू कश्मीर में कैसे डेवलपमेंट्स हुए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको कहते हैं वो आंकड़ों के साथ हम आज बात करेंगे। अगर आप देखेंगे उस दौर में किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि जम्मू कश्मीर अवाम के सामने सच रखा जाए कि असल कहानी है क्या और आपको क्या दिखाया जाता है। उसमें यहाँ की सियासी जमातें भी इन्वॉल्व है, उसमें यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व है, उसमें यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव उस दौर के एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे उनकी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर आप आज देखोगे कहीं ना कहीं पे ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर अवाम को होम मिनिस्टर खुद मुखातिब होते कहते हैं कि हम अब सपा यहाँ से वापस लेने के मूड में हैं। हम जो फौजी साहिबान हैं उनको हम बॉर्डर्स पे वापस भेजना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। जो यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों पे जब होम मिनिस्टर बात करते हो, देश के होम मिनिस्टर बात करते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं पे ना एक सोचने की गुंजाइश रहती है। अब जबकि कांग्रेस जिस दौर में था उस दौर में यहाँ पे कैसे हालात थे, उस दौर में कितने लोगों पे अपसपा लगा, उस दौर में कितने लोगों पर कहते हैं वो कितने फैक एनकाउंटर्स हुए, उस दौर में कितने लोगों को पोटो के तहत बंद किया गया। ये तमाम चीजें जमीनी सतह पे यहाँ की जम्मू कश्मीर जो सियासी जमातें हैं उनको जवाब देना होगा। और यहाँ के नौजवान को अब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, अमित शाह साहब ने जब कल एक विंडो दी कि आप इस विंडो से देखिए और आपके सामने पूरा हिंदुस्तान पड़ा है जिसमें हमने आपके लिए ख्वाब देखे हैं, जिसमें हमने आपके लिए आपका फ्यूचर देखा है, तो अब जम्मू कश्मीर अवाम की क्या रिएक्शन होगी। लेकिन बहस से तजिया निगार, बहस एक सहाफ़ी, मैं इस पे बात करूंगा। जो कल का इंटरव्यू था वो उसमें 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं अमित शाह को, क्योंकि जिस सिलसिलेवार तरीके ने उन्होंने डेवलपमेंट को और नौजवानों को और सिक्योरिटी कंसर्न्स को, तीनों चीजों को एक दिशा में कनेक्ट किया और खास तौर पर यहाँ की सियासी जमातों को आईना दिखाने की कोशिश की कि हम यहाँ पे जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप पार्लियामेंट इलेक्शन का हिस्सा बनिए, उसके बाद फिलफोर यहाँ के जो रियासती असेंबली के इलेक्शन है वो हो जाएंगे और साथ में ही उसका जो रियासत का जो दर्जा है वो वापस मिलेगा। यूटी चेंज होके फिर वापस रियासती दर्जा मिल जाएगा। तो इन तमाम चीजों पे कल जो अमित शाह ने बात की, और अगर आप देखेंगे उसमें रिएक्शन कहां से आ गई। सबसे पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक ट्वीट आता है कि उन्होंने खैर मकदम किया कि इस बात को कि अपसपा यहां से अब जा रहा है। होम मिनिस्ट्री अब इस बात पे सोचने पे कह रहे हैं, वो सोचो विचार कर रही है कि हम अपसपा को यहां से वापस ले रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर अवाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और अगर आप देखोगे इस वक्त की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी निज़ाम में, वो 250 एबो इंसिडेंट्स हुए थे 2015 में और आते आते आज वो जीरो हो चुके हैं। उन्होंने जो जितने भी डेवलपमेंट्स के नाम पे उन्होंने जो कॉलेजेस गिनवाए, उन्होंने वो जो नर्सिंग कॉलेजेस का नाम लिया, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बड़े विस्तार के साथ बात की और एक यकीन के साथ वो इंटरव्यू था। और उस इंटरव्यू में आप ये देख सकते हो कि बड़े जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो कहते हैं वो बोलने का जो अंदाज था, वो सीधा मुखातिब थे जम्मू कश्मीर अवाम से। और जम्मू कश्मीर अवाम को वो एड्रेस कर रहे थे कि बीजेपी ने बहस से, मैं होम मिनिस्टर, मैंने क्या काम किया और मैं क्या चाहता हूं जम्मू कश्मीर अवाम, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो नौजवान कौम है वो कहां पे मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा पत्थर छोड़ो लैपटॉप लो हाथ में। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे पैगामात आए हैं। आज बहुत अरसे दराज के बाद जम्मू कश्मीर के बारे में जब होम मिनिस्टर ने ये तमाम बातें रखी और उन तमाम चीज़ों पे बात रखने की कोशिश की कि किस तरह से हम डेवलपमेंट के आंकड़े को छूना चाहते हैं, हम नेगेटिविटी को यहाँ से बाहर करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमसे बात करना चाहता है वो हिंदुस्तान के आईन के दायरे में जो बात होगी वो उस दायरे में होगी। तो कहते हैं वो क्लियर मैसेज है। उन्होंने कहा हुर्रियत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है अब, और हमने उन तमाम प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया है जो फंड से बनी हुई है, जो किसी गलत तरीके से बनी हुई है। लेकिन कुछ एक सवालात अभी भी है जिसमें अगर कोई नौजवान अच्छी तालीम हासिल करता है, उसके बाद अगर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, अगर वो कहीं जाने के लिए पास अप्लाई करता है, तो उसमें उसको रुकावट आती है वेरिफिकेशन की। उसमें बताया जाता है आपका मामू कभी कभार
اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں شامل رہا ہے, آپ کا انکل اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں رہا ہے, شامل رہا ہے, تو ہم آپ کو ویریفیکیشن نہیں دینا چاہتے. اس پہ تقریباً ہوم منسٹری کو ایک بار کہتا ریویو لینا ہوگا کہ جموں کشمیر عوام کو تھوڑی سی اور راحت دیں. لیکن جب کل ہم نے میں نے بڑے غور سے وہ پورا اس کا جو انٹرویو سنا, اس کے جو نقوش اب بڑے ہیں ذہنوں میں. اب جب کہ ہوم منسٹری نے جس طرح سے کل سیکیورٹی معاملے میں, نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, کشمیر کے انویسٹ کے بارے میں, سیکیورٹی کے معاملے میں, جموں کشمیر پولیس کے معاملے میں, جب اس نے ان تمام چیزوں پہ بات رکھی, بڑا مہتوپورن تھا. اور انہوں نے کل کڑا سندیش دیا پاکستان کو کہ آپ اپنی جو کشمیر آکوپائیڈ ہے اس میں جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ہندوستان کے خلاف, ان کو بند کر دیجئے. میری طرف سے آپ کو خوش آمدید ہے. اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں پہ جب کل ہوم منسٹر نے بات رکھی تو بہت انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ, بڑے کہتے ہیں وہ پرجوش انداز میں, اور جس طرح سے انہوں نے ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا, براہ راست جموں کشمیر عوام سے مخاطب تھے. تو کہیں ہندوستان کا اتنا بڑا سیاستدان, اس قد کا سیاستدان, اور وہ جموں کشمیر عوام سے براہ راست مخاطب ہو, اور جموں کشمیر چینلز پہ ہی ہو. تو یہ گلستان ٹی وی کیونکہ جموں کشمیر میں زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو وہاں پہ جب وہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ کر رہے تھے تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بنتا ہے, ایک اچھی میسج باہر جاتی ہے. تو ہم اس انٹرویو کو 100 میں سے 100 نمبر دیتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے کل بڑے سلسلے وار طریقے سے انہوں نے ان تمام چیزوں پہ بات کی. فی الحال کے لیے اس تجزیے کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ونگز ٹی وی کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.